اگر آپ کو انگریزی فلمیں سمجھنے میں دشواری ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ہالی ووڈ فلم کا اختتام آپ کو چونکا دے گا۔ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کسی بھی فلم کی کہانی کے آغاز میں ہم سڑک پر جاتے ہیں۔ اس بس میں 2 بسیں دکھائی گئی ہیں۔ خواتین طالبات کی ایک بہت ہے جو وہ سب اپنی اپنی کلاسوں میں جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام متسوکو تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور اپنے نوٹ لے رہی تھی۔ جب وہ کتاب میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے دوست اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تم ہر وقت لکھتے رہو، اس طرح تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں دیکھو ہر کوئی نوٹ بنا رہا ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر اس کا دوست اس کی نوٹ بک چھین لیتا ہے اور اس کا قلم گر گیا، اور جب وہ اپنا قلم اٹھانے کے لیے جھکتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کچھ بہت ہے تیزی سے آتا ہے اور ان لڑکیوں کے ساتھ دونوں بسوں کو نصف میں کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمام لڑکیاں اس طرح کے حصوں میں کاٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی متسوکو بیدار ہوا وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں حیران ہوں کہ اب کیا ہوا، کیونکہ وہ قلم اٹھانے کے لیے جھکی تھی، اس لیے میں بچ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ وہ بس سے اتر کر بھاگنے لگتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ سب ملتا ہے، جو چیز کاٹتی ہے وہ ہوا کے سوا کچھ نہیں۔ یہی ہوا اب سب کو کاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بھی متسوکو کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ متسورو کو بہت تیزی سے چیخنا، وہ دوڑنے لگتی ہے اور بھگتے ہوئے اسے اپنے آگے 4 دشمن نظر آتے ہیں۔ لڑکیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور وہ انہیں جھکنے کو کہتی ہے، لیکن یہ کافی ہے۔ بہت دیر ہو چکی تھی اور ہوا ان پر بھی آدھی چل رہی تھی۔ یہ کاٹتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان میتسو جب ایک لڑکی کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ کچھ لڑکیاں ہیں جو سائیکل چلا رہی ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ وہ اسے بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن وہ ہوا ان کے ساتھ وہی کرتی ہے جو اب ان کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ دوستوں کے ساتھ ہوا اور اس دوران وہ لڑکی وہ بھی مارا جاتا ہے جو ابھی تک اس پوشیدہ چیز کی وجہ سے زندہ ہے۔ اب وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، اور ہم متسوکو کو دریا کے قریب دیکھتے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس دریا میں پہلے ہی بہت سی لاشیں موجود ہیں۔ لاشیں وہیں پڑی تھیں جنہیں ہوا لے گئی، کسی نادیدہ چیز نے اسے وہاں سے کاٹ دیا تھا۔ وہ میت کے کپڑے لیتی ہے اور انہیں تبدیل کرتی ہے۔ اگلے منظر میں ہم متسوکو کو دیکھتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک سکول تک پہنچ گئی جہاں طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وردی متسوکو کی وردی تھی، اس سے بالکل مختلف تھا، یعنی یہ بھی تھا تو وہ اس کے سکول کی طالبہ نہیں تھی۔ پھر ایک لڑکی متسوکو کے پاس آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے، تم واقعی کیسے ہو؟ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو وہ لڑکی اس کی بہترین دوست ہے۔ لیکن متسوکو نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ کیونکہ آپ واقعی میرے بہترین دوست ہیں۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ صدمے کی کیفیت میں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ متسو اور اس کا سب سے اچھا دوست کافی حد تک ساتھ ہے۔ وہ صرف اس وقت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تیز ہوا چلتی ہے اور متسو ڈر جاتا ہے، اس کی بہترین عمارت کے اندر جاتی ہے۔ میرا دوست کچھ سمجھ نہ سکا متسوکو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پوچھنے لگتی ہے کہ تم اتنا کیوں کانپتے ہو؟ تم اتنے ڈرے کیوں رہ رہے ہو؟ کیوں؟ پھر کیا ہوا تمہیں؟ متسوکو اپنے بہترین دوست کو سب کچھ بتاتا ہے، جس طرف ہوا کا جھونکا چل رہا ہے آیا، اور اس کے اسکول کے تمام طلباء کے پاس۔ یہ سن کر اس کا دوست اس کی بات کاٹ کر چلا گیا۔ اسے کھڑکی کے پاس لے جاؤ اور اس کا ہاتھ باہر نکالو۔ وہ کہتی ہے، دیکھو یہ صرف ہوا ہے، یہاں کوئی اور چیز متسوکو کے دل کو گرما نہیں سکتی۔ مجھے کچھ سکون ملتا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے شاید یہ صرف میرا خواب ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد متسوکو کا سب سے اچھا دوست اس کے پاس واپس آتا ہے۔ وہ 2 اور دوستوں کو لے کر کلاس بند کر دیتی ہے، ان چاروں کے ساتھ ہی ایسا کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ کلاس کے لیے روانہ ہونے والا ہے، تبھی ان کا استاد وہاں آتا ہے اور وہ انہیں دیکھتی ہے، لیکن وہ چاروں وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ وہاں ایک جھیل تک پہنچ جاتی ہے۔ متسوکو کا سب سے اچھا دوست اس کے دونوں کا دوست ہے۔ اس نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی بتایا۔ وہ بتاتی ہے تو ایک لڑکی کہتی ہے کہ یہ آئینے کی طرح سچ ہو سکتا ہے۔ ایک دنیا ہے جہاں سے اس دنیا سے، یہ کہہ کر کہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ تالاب میں پتھر پھینک کر کہتی ہے، دیکھو میں نے یہاں ایک پتھر پھینکا ہے، لیکن شاید کسی اور دنیا میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یہ اچانک ایک مگرمچھ تالاب سے باہر آتا ہے، وہ لڑکیوں میں سے ایک کو کھاتا ہے، اور پھر لڑکی کہنے لگتی ہے، دیکھو میں نے کیا کہا، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، دنیا میں بالکل نہیں ہوتا، اور جو بھی یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ بھی اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ مگرمچھ اسے کھا گیا، اور دیکھو یہ ہے، لہٰذا اس جھیل کے قریب ایک ہونا بالکل محفوظ ہے۔ بستر کا مطلب ہے چاروں طرف ایک ہی بستر نظر آتا ہے۔ وہ بستر سے تکیا اٹھا کر اس سے کھیلنے لگتی ہے۔ پھر ہمیں دور سے 2 لڑکیاں نظر آئیں۔ میں ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، ایک دلہن کے لباس سے، کیونکہ یہ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی کیا تھا۔ جس کے بعد ان دوستوں میں سے ایک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس دنیا میں ناممکن ہے کیونکہ ہمارے لیکن قسمت میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔
हम इसे भी बदल सकते हैं, जिसके बाद सब लड़कियां अपने स्कूल वापस आ जाएं और अगला लेक्चर देने क्लास में गया। वो वहां जाती है और फिर वो मित्सू को अपने अंदर देखती है। पास ही एक तकिया पड़ा है। अब जैसे ही वो इस तकिए को लेने के लिए नीचे झुकती है, फिर उसका उस्ताद पूरी क्लास में बंदूक चिल्लाना शुरू कर देता है। और जैसे ही मित्सू ने वो तकिया उठाया, वो ऊपर देखती है और अपनी क्लास के तमाम तलबा को देखती है। लड़कियां यहां और मारी गई हैं, लेकिन एक बार फिर वो पिछली बार की तरह फरार हो गई। मित्सुको को इसके ख्वाबों में एक बार बचाया गया था कि उस्ताद इस वक्त गुजरता है जब 2 और लड़कियां आईं और मित्सुको को बचाने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है। वो करती है, लेकिन एक और उस्ताद वहां आता है। वो दोनों लड़कियां मारी गईं। अब ये ज्यादा से ज्यादा तलबा की जान बचाता है। मित्सुको उनके साथ भागने लगा, लेकिन स्कूल में तमाम असातिज़ा हैं। अब वो लड़कियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ फायरिंग के दौरान तमाम लड़कियां जैसे ही तुम वहां से निकलो यहाँ हुआ उन्हें अब यहाँ काट देती है। मित्सुको यहाँ एक बार फिर अकेला रह गया है और वो वहां से भागकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चली जाती है। वो बजरिया पुलिस स्टेशन जाती है। इसकी ये बात वहां सब कुछ बताने लगती है। सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की इसे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल के कपड़े पहने, इसने कोई पहना नहीं है। और जब वो इसे एक पहने हुए देखती है, आईने को थामे फिर मित्सुको आईने में देखता है। वो देखती है कि वो बिल्कुल बदल चुकी है और लोग इसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि इसके नाम से पुकारते हैं। वो इसे यहाँ किसी और नाम से पुकार रहे थे। हमें मालूम हुआ कि वो शादी करने वाली है। फिर वही पुलिस अफसर इसे अपनी शादी पर ले गया। ये देखकर आसपास के लोग इसे अपने साथ ले गए। वो जैसे ही इसे मुबारकबाद दे रहे थे, वो सब इसे चर्च ले जाते हैं और मित्सुको का सबसे अच्छा दोस्त भी वहां है मौजूद है। मित्सुको इससे पूछना शुरू कर देता है, फिर मेरे साथ यही हो रहा है। इसका दोस्त इसे कहता है कि अभी खामोश रहो, हम इस वक्त किसी के कंट्रोल में हैं, जैसे तुम वही करो जैसा मैं कहता हूं और ये कहता हूं। इसने अपनी शादी का जोड़ा पहन रखा है और वो मुझे जल्द से जल्द वहां जाने को कहती है। वो अपनी शादी की तकरीब के लिए आगे बढ़ रही है। फिर वहां की तमाम लड़कियां इसका मजाक उड़ाती है। ये देखकर वो अपनी खूबियां उड़ाने लगती है। दोस्त एक एक करके सबको मारने लगता है। जिसके बाद जैसे ही मित्सु आगे बढ़ता है, जब वो बड़ी होती है तो इसके दूल्हा की जगह एक ताबूत होता है। वो वहां खड़ा ताबूत खोलते हुए नजर आता है। जब आप बाहर जाते हैं तो एक बड़ा सुअर निकलता है। मित्सुको इसे देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है और टूटी हुई बोतल से इस पर हमला करता है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेहतरीन दोस्त चर्च से बाहर भागते हुए आते हैं। उन्हें रोकने के लिए गेट पर 2 लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन मित्सुको की बेहतरीन दोस्त ने उन्हें मार डाला और वहां से भाग गया। चुल्लू वहां मित्सुको दूसरी समत भाग रहा है, क्योंकि अब इसे महसूस होने लगा कि इसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे बढ़ो, लेकिन जब वो खुद को दूसरे आईने में देखती है, अब वो खुद को एक बार फिर बदली हुई महसूस करती है। डॉल इस जगह पर होनी चाहिए जहां मित्सुको था। वो ऐसा कर रही थी। जब कुछ लड़कियां इसके पास आईं, वो इसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम रेसर हो, खड़े क्यों हो, दौड़ क्यों नहीं रहे हो। और जब वो भागना शुरू करती है तो वो खुद जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा तवानाई महसूस करने लगता। इसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करनी होगी। भागते हुए वो इसे मुर्दा कहने लगती है। वो दोस्त भी देखे गए जो कुछ अरसा पहले इसके साथ थे। वो इसके स्कूल में मारी गई थी। जब इसी लम्हे इसका सबसे अच्छा दोस्त भी आ गया। फिर दोनों ने देखा कि एक ही सुअर और वो औरतें जिन्होंने उन्हें गिरजाघर में रोक, वो सब उनकी तरफ आ रहे थे। भागते हुए कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती है, लगता है आप इस दुनिया से बाहर हो गए हैं। अगला हम मित्सुको देखते हैं। मैं भागता हुआ एक अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंचा। वो वहां जाती है और वहां कुछ तालिब इल्म नजर आते हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तमाम लड़कियां मित्सुको बताने लगे कि हम सब मर गए और तुम भी मर गए, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब मित्सुको का बेहतरीन दोस्त वहां आकर इस लड़की को मारने के बाद वो वहां से चला गया। मित्सुको ने अगवा कर लिया है। बेहतरीन दोस्त इसका नाम बुलंद आवाज से पुकारती है। पौका पौने के लिए पूछता है, जिससे मित्सुको इसकी वजह से वो इसका नाम जोर से लेने लगती है। मित्सुको अपनी हकीकी शक्ल में वापस आने के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त जाता है और उसका हाथ देता है। वो मुझे दिखाती है और कहती है कि मेरे हाथ पकड़ो, इससे मुंसलिक तार को बाहर निकालो ताकि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन मित्सुको को भी डर था कि शायद ये तार खींचने के नतीजे में इसकी मौत हो सकती है और उसकी वजह मित्सुको अपने बेहतरीन दोस्त से बहुत प्यार करता है। मैं इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ऐसी नहीं है। मैं ये करना चाहता था, लेकिन मैंने इसे बहुत ज्यादा मजबूर किया। जब वो ऐसा करता है तो वो इसकी तारें खींचती है। जैसे ही इसने अपने बेहतरीन दोस्त की लाश खींची, हिस्सों में तकसीम किया जाता है और एक ही वक्त में इसे इस दरवाजे के बाहर एक गेट नजर आता है। पहुंचकर वो देखती है कि अब वो मर्दों में घिरी हुई है। पहले ही दुनिया और वहां पहुंच चुका है, जिसमें कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे। लड़के देख रहे थे। जब एक लड़के ने मित्सुको को देखा, उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुस्तकबिल में हो। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है।
कुछ देर बाद जब इसे होश आया तो वो आगे बढ़ी तो इसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। आदमी एक खेल खेल रहा है और इसी खेल में मित्सुको पहले जैसा ही किरदार दिखाई देता है। मित्सुको को देखते ही वो बूढ़ा हो जाता है। आदमी कहने लगता है कि मैंने खुद ये खेल खेला है और मैं ही हूं जिसने तुम लोगों को बनाया है। मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं, आपने मुझे बहुत पहले मार दिया था। वो चली गई थी लेकिन मेरे पास तुम्हारा डीएनए था। जब मैं आपको ले गया और मित्सुको दोबारा बनाया, ये सुनकर इसे मालूम हुआ कि अगर ये खेल है तो वो सोचता है कि शायद मैं अभी तक यहाँ हूं। मैं तभी अपनी दुनिया में जा सकता हूं। जब एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास ले जाता है, फिर बूढ़ा मुझे अपने करीब बुलाने लगता है। मित्सुको को इसकी आखिरी सतह मुकम्मल करने में मदद करे। वो आगे बढ़ने लगती है। तब मित्सुको को याद आया कि इसके दोस्त ने क्या कहा था। बात याद आ गई होगी कि अगर हम इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं, हम वो करेंगे जो किसी और दुनिया में नामुमकिन है। फिर आप इस खेल और उसके साथ बाहर आएंगे। वो आदमी का गला भी घूंट देती है और वो कहने लगी, बस हमारे साथ खेलो। ये कहते हुए मित्सुको बूढ़े को अपनी छड़ी देना पड़े। वो इसे उठाकर अपने पेट में डाल देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और हम यहाँ हैं। आपने देखा कि बूढ़ा आदमी उसके बारे में सोचता भी नहीं है। मैं मेसू के साथ ऐसा कुछ कर सकता था और उसके साथ ही उसकी तकदीर मुकम्मल तौर पर महर हो जाती है। ये इस दुनिया में बदलता है, यानी वो खेल में मर चुकी थी लेकिन हकीकी दुनिया में वो मुस्तकबिल में भी जिंदा थी। हम भी ये दिखाया गया है कि मित्सुको की बाकी जिंदगी किरदार भी किसी वजह से अपने नहीं होते, वो आपको मारते और अब वो सब गेम का हिस्सा है। मित्सुको अगले मंजर का हिस्सा नहीं था। एक बर्फीली जगह पर पोड़ा दिखाया गया है और अब वो हकीकी दुनिया में आ चुकी है और एक ही वक्त में ये जहन को हैरान करने वाला था। कहानी यहीं खत्म होती है। इसी तरह की वजाहती फिल्में देखने के लिए कमेंट में अगला लिखना ना भूली। शुक्रिया देखने के लिए।